and it is powered by Arise Hyundai and sponsored by Himalaya Platinum TMT Saria. So match has been kicked off here, and with right now the players of Kashmir Avengers taking the charge, sent it towards, but there was a defender from the opposite team, that of Foods and Supplies 11. He kicks it forward but couldn't control, and ball gone out of that touch line for a throw in. Match number 44 has just kicked it off. It's the second one of the day, and there will be 3 matches today as well, so triple header today as well as it was yesterday. And this is Irshad Mahuddin. With me is my fellow commentator and one of the Valley's renowned commentator, Mr. Shafi Para, having a tea right now. And we are from the com box of J&K State Sports Council building, and you are watching this broadcast on Free Film Productions and on ANN News. Here the free kick goes in favor of the JK Foods and Supplies. He puts it forward, well trapped there by the defender, and defender sends it towards the midfielder just back passes it towards his another defender, sends it backward, and he puts it forward to that player who is as a winger for the team of Kashmir Avengers. He back passes it, header comes into play but not on target, goes out of the touch line. So once again the throw-in goes in favor of JK Food and Supplies 11. Foods and Supplies. Let's take a look at the points table at where these two teams are standing at right now. They are both on the pool B, and Food and Supplies are at the nil of the bottom. They have played 5. This is their 6th one, and they have only drawn 1 of the match, and they haven't been able to win anyone. And so when we talk about the Kashmir Avengers Football Club, in which 3 or 4 foreigners are playing as well. Kashmir Avengers have played before this 3 of the matches. They have won 1 and drawn. They have drawn 1 match as well, so they have 4 points on the board, and Food and Supplies with 1 on the board. So here free corner kick goes in favor of the Kashmir Avengers. He will just play it. That left footer comes into play. He just sent it and headed by the number 4, and it has gone out now, so it will be the free goal kick goes in favor of the number 99 belonging to the team of JK Food and Supplies 11. Very nice tussle going on between the Foot and Football midday session, and the match number 2 is in progress. This is the match number 44 of the Khyber Milk Premier Football League. First half in progress, sent it into the center, and 2 fielders just went down with that kick. That was a very scintillating kick, very powerful, I would say. Right now the ball is in possession of the midfielder, who sent it to his defender back passes it, sent it forward for his number 19, who is Ahsan kicks it with his sweet left footer, sent it forward, but the goalkeeper in the process comes out from the team of Foods and Supplies with number 99 on the jersey. He will just going to kick it forward for his outfielders. He sends it well trapped there by one of the players from in fact the central fielder from the novelty, in fact the Kashmir Avengers, number 19, and the referee has blown his whistle. Foul was declared, and it will be the foul kick which goes in favor of the Kashmir Avengers Football Club. He stands in, and the defender comes in rescue for his goalkeeper. Has been now taken by number 6, took it forward, but well blocked thereby at the center from one of the central midfielder from the Kashmir Avengers. And ball goes out. Throw in goes in their favor. 2 is the number. Sent it in to 6. 6 passes it to number 2 yet again. And they are trying to enter into that rectangular area. And he comes in rescue one of the player, and with deflection ball goes out. Throw in goes in favor of the Food and Supplies 11 player. He sends it in to his number 6. Number 6 couldn't control, and
in the process. Number 6 from the opposite team as well took that. Is the striker of Kashmir Avengers. He is going forward. He kicks it forward. Oh dear, there could be a chance. No. Yes, yeah, there is still a chance. But the defender trying to come out. And the kick has been committed. But it was not on target. It goes out of that post. And there is no damage to the team of Food and Supplies. One of the chance we could say it was not a half of the chance. If he could have controlled the ball, there was a certain room as well. But he didn't control. He tried to kick it, but the kick was not on target. It goes out of that goal line, so it will be the goal, free goal kick goes in favor of the Food and Supplies 11. Match number 44 in progress. Kashmir Avengers, the team who is in whites and blues, and the team Food and Supplies as orthodox in their red and black color jersey, and they are right now having the ball in their possession, but taken away by number 2. Number 2 sent it into the center. It has been once again taken by 6 of the number. He's just sent it to his defender. Defender back passes it to number 5. Number 5 just trying to go forward with some foul being committed, but no such signal from the referee there. So it will continue, and he sent it over that crossbar into the stands out there, but he counts it by itself and into the ground now. And number 99 from the Food and Supplies going to deliver a kick here, and he will send it for his outfielders. Here goes my co-commentator for the further proceedings for the first time in this match. Here goes Shafi Para. शुक्रिया इरशाद। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सारे देखने वालों को एक बार फिर मेरी तरफ से सलाम, और ये कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रही है, तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा काम किया है। और इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है फुटबॉल का, और 59 मैचेस रहेंगे इस टूर्नामेंट के, जिसमें अभी तक 43 मैच हो चुके हैं। 44वां मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच, एक तरफ से कश्मीर एवेंजर्स तो दूसरी तरफ से फूड्स एंड सप्लाइज। सिंथेटिक टर्फ टिया से श्रीनगर ग्राउंड से हम बराह रास्त आपको लाइव कमेंट्री दे रही है। तो बात करेंगे यहाँ पर 2 पूल्स की, एक पूल में 8 टीमें, दूसरे पूल में 8 टीमें, यानी पूल ए पूल बी। तो अगर दोनों पूल्स की बात की जाएगी तो 16 टीमों ने अभी इस इवेंट में पार्टिसिपेट इरशाद किया है। पूल ए की अगर बात करेंगे, जहां पर हमें डाउनटाउन हीरोज़ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, एजीज 11 है, रियल कश्मीर आर है, कश्मीर महाराजा है, अली जाना फुटबॉल क्लब है, जम्मू कश्मीर बैंक एकेडमी है, जेके फॉरेस्ट 11 है। ये 8 टीमें जो इरशाद है ये पूल ए में है। और जहाँ तक पूल बी की बात करेंगे, वहाँ पर जेके बैंक 11 की टीम है, आर्को फुटबॉल क्लब की टीम है, नोवेल्टी फुटबॉल क्लब की टीम है, स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी की टीम है, कश्मीर एवेंजर्स फुटबॉल क्लब की टीम है जिनका इस वक्त मैच चल रहा है, जम्मू कश्मीर SPDC 11 जिन्होंने आज पहला मैच जीता है उनकी टीम है, इकबाल स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब जिन्होंने अभी तक एक और टीम है पूल बी से, और फूड्स एंड सप्लाइज जो कि और एक टीम है। तो कुल मिला के 16 टीमें, पूल ए में 8, पूल बी में 8, और अब देखते हैं कि किस टीम ने क्या क्या कुछ किया है। लेकिन इरशाद इससे पहले कि हम ये कहेंगे कि पूल ए में कौन टॉप कर रहा है, पूल बी में कौन टॉप कर रहा है, पूल ए में सबसे पॉइंट्स किसके है, पूल ए में सबसे कम पॉइंट्स किसके है, पूल बी में किसके ज़्यादा पॉइंट्स है, किसके कम पॉइंट्स है, और किस टीम ने अभी तक जो है जीत हासिल नहीं किया है, तो वो चीज़ भी डिस्कस इस टेबल में हम करेंगे। तो अभी मैच चल रहा है दोनों के बीच, एक तरफ से कश्मीर एवेंजर्स जो कि सफ़ेद और ब्लू की यूनिफॉर्म पहने हुई है और उनका सामना कर रही है जो कि जिसको हम अमूमन मरून कलर कहते हैं, वो हालांकि ऑरेंज भी मुझे दिख रहा है यहाँ से, तो उनका सामना कर रही है। तो दोनों टीमें जो है एक तरफ से कश्मीर एवेंजर्स तो दूसरी तरफ से फूड एंड सप्लाइज। पहले इरशाद इन 2 टीम्स की बात करेंगे। कश्मीर एवेंजर्स ने अभी तक कितने मैचेस खेले? कश्मीर एवेंजर्स ने बहुत कम मैचेस अभी खेले हैं, 3 ही मैचेस खेले हैं, 1 मैच जीता है, 1 मैच हारा है, 1 मैच ड्रॉ किया है। तो उनके लिए ये 4था मैच है कश्मीर एवेंजर्स के लिए। तो कश्मीर एवेंजर्स के अगर पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे तो 5वें नंबर पे है, 5वें पायदान पे है और 4 पॉइंट्स अभी तक उन्होंने हासिल किए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम दूसरी टीम की जो है फूड एंड सप्लाइज। इरशाद इन्होंने 5 मैच खेले हैं, अभी तक कोई नहीं जीता है, 1 मैच ड्रॉ किया, 4 मैचेस हारे हैं। तो
यकीनी तौर पे एक ही पॉइंट मिलेगा क्योंकि एक ही मैच ड्रॉ हुआ है, 4 हारे है। तो फूड एंड सप्लाईज़ की कुल मिला के हम बात अगर करेंगे तो छुट्टी मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट से हो रही है। तो दोनों टीमें जो है इस वक्त जो आपस में भिड़ रही है, कश्मीर एवेंजर्स और फूड एंड सप्लाईज़। तो फूड एंड सप्लाईज़ के लिए छठा मैच है और कश्मीर एवेंजर्स के लिए चौथा मैच है। तो इरशाद क्या कहेंगे आप अभी तक पूल ए, पूल बी में सबसे टॉप टीमें जो है, पहले पूल ए की बात करेंगे जहां पर हमें डाउनटाउन हीरोज़ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पूरे इवेंट में बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया है। और जेके पुलिस बहुत ही तगड़ी टीम है, पिछले 2 मैचेस में कुछ खास कारकर्दगी नहीं रही है। जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत की, पहले 3 मैचेस में कोई ड्रॉ भी नहीं किया था और कोई मैच हारा भी नहीं था, 3 में से 3 जीते। पूल ए की बात मैं कर रहा हूं। और एजीज 11 की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है, उन्होंने भी अभी तक 5 मैचेस खेले और 3 मैचेस उन्होंने भी जीते हैं। तो मुझे लगता है कि 3 टीम्स जो है ये टॉप कर रही है पॉइंट टेबल की अगर बात करेंगे पूल ए से। और अगर पूल बी की बात करेंगे वहाँ पर जेके बैंक अभी अनबीटन है, कोई मैच हारा ही नहीं है, 4 खेले है, 4 जीत लिया है और कोई मैच ड्रॉ भी नहीं किया है जेके बैंक ने। उसके बाद उनका जो पीछा करे पूल बी में वो है आर्को फुटबॉल क्लब। उन्होंने भी शुरुआत बहुत अच्छी की है, बीच में थोड़े से फंस गई लेकिन अगला मैच जो है फिर से अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 5 मैच के लिए 3 जीते हैं, 10 पॉइंट्स के पायदान के साथ इस वक्त पूल बी में वो दूसरे नंबर पे है, टॉप पे नहीं दूसरे नंबर पे, क्योंकि जेके बैंक ने कल मैच जीत लिया है। तो इरशाद क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर नोवेल्टी भी है, उनका अभी आने वाला मैच है, अब नोवेल्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, 5 मैचेस के लिए है, 2 जीते हैं, नोवेल्टी के लिए मैच जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और उनका सामना करेगा जेके बैंक जिन्होंने कोई मैच हारा ही नहीं है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि ये 8 टीमें जो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे और फिर क्वार्टर फाइनल से नेचुरली 2 टीमें जो है वो सेमीफाइनल में जाएंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि किस टीम ने आज जो है अभी तक ज़्यादा इम्प्रेस किया है अपने परफॉर्मेंस से? ज़्यादातर तो आप ऐसे एजीज़ की बात ज़्यादातर करती हो, बहुत ही रिनाउंड क्लब है, लेकिन आपको किस टीम ने ज़्यादातर अभी तक इम्प्रेस किया है जेके बैंक टीम को छोड़ के? क्योंकि जेके बैंक तो वाहिद ऐसी टीम है जो कि उमूमन सबसे ज़्यादा फाइनल्स में प्रवेश करती है, जेके पीडीसी की भी टीम फाइनल्स में बहुत बार प्रवेश करती है। तो क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया। यहाँ पर बिल्कुल आपने जिन टीमों का यहाँ पर जिक्र किया है उनमें तो सरफहरिस्त जो है इस वक्त टीम जेके बैंक की, अगर उसको छोड़ के या पहले जो डाउनटाउन हीरोज़ पूल ए में टॉप कर रही है इस वक्त, 6 मैचेस उन्होंने खेले, 4 जीते हैं और 2 ड्रॉ किए हैं। तो डाउनटाउन हीरोज़ अभी तक अनबीटन कही जाएगी, क्योंकि ड्रॉ तो 2 मैच हुए हैं, 4 उन्होंने जीते हैं, 6 मैच खेले हैं, तो उनके लिए अब लास्ट का मैच होगा। सो वर्चुअली हम ये कहेंगे कि जो डाउनटाउन हीरोज़ एफसी की टीम है वो वर्चुअली इस वक्त क्वार्टर फाइनल में एक कदम तो डाल चुकी है। और अगर उसी तरह बात करेंगे यहाँ पर जेके बैंक 11 की टीम की, उन्होंने 4 मैच खेले हैं, 4 के 4 उन्होंने यहाँ पर जीते हैं। तो इस तरह यहाँ पर उनकी भी तो हम एक कदम उन्होंने भी यहाँ पर सेमीफाइनल्स में तो डाला है। तो दूसरी बात अगर फिर यहाँ पर आर्को की बात करें, आर्को की टीम ने भी बहुत ही इम्प्रेस किया है। आर्को की टीम यंगस्टर्स टीम है और वो उनको ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, दे हैवंट दैट सॉर्ट ऑफ अ टाइम टू कम फ्रॉम दैट वेरी फॉर टू द श्रीनगर टू हैव द प्रैक्टिस सेशंस एट अ फ्रीक्वेंट टाइम्स। तो वहाँ पर वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ की जो टीमें डाउनटाउन हीरोज़ की है, जेके बैंक की है या बाकी जो टीमें हैं, तो वो यहाँ पर बहुत ही शानदार कोशिश, तो मैच की तरफ वापस आते हैं, यहाँ पर कोशिश की थी, वहाँ पर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ था, तो यहाँ पर पहला गोल दाग दिया है कश्मीर एवेंजर्स की टीम ने। तो इस तरह यहाँ पर पहला छाप छोड़ती हुई डाउनटाउन इनफैक्ट कश्मीर एवेंजर्स की टीम। तो इस तरह एक गोल यहाँ पर, ये मैच नंबर 44 जारी है, फर्स्ट हाफ इस वक्त चल रहा है, पहला गोल करने में कामयाब हुई यहाँ पर कश्मीर एवेंजर्स की टीम। तो इस तरह बहुत ही शानदार तरीके से कश्मीर एवेंजर्स यहाँ पर अपनी छाप छोड़ते हुए पहला गोल दागने में कामयाब। वहाँ पर 5 नंबर के खिलाड़ी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2 खिलाड़ी है इस टीम में कश्मीर एवेंजर्स में जो कि फॉरेन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट्स टेबल की, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मैचेस अब खेलने बाकी नहीं है। कश्मीर महाराजा की टीम पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने यहाँ पर पूरा फुल सेट ऑन कर दिया है, ऑफ कर दिया है बल्कि, क्योंकि कश्मीर महाराजा क्लब की अगर बात करें 7 मैचेस उन्होंने खेले, खाली 1 जीता है। तो हम यूँ कहेंगे कि कश्मीर महाराजा के लिए ये टूर्नामेंट जो है समाप्त हो चुका है।
7 मैचेस वो खेल चुके हैं, खाली एक मैच जीतने में वो कामयाब हुई, 3 ड्रॉ करने में कामयाब हुए वो, लेकिन उनके पास जो पॉइंट्स टेबल में यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो खाली 6 पॉइंट्स हैं। तो हम यूँ कहेंगे कि कश्मीर महाराजा की टीम है, ये वर्चुअली हम ये कहेंगे कि वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट हम कहेंगे। और वही अगर बात करेंगे जेके पुलिस की, वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जब 6 मैच खेलते हैं 3 आप पहले जीत चुके हैं, 3 में से 3 जो है जेके पुलिस ने जीते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो 3 मैच उन्होंने खेले वो तीनों के तीनों जो है ड्रा में चले गए हैं। तो जेके पुलिस की टीम के लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट, और उनके जो पॉइंट्स टेबल में है यहाँ पर फिलहाल अभी जेके पुलिस की टीम के पास 12 पॉइंट्स हैं, वो भी अभी जो उनके पास एक मैच है, अगर वो जीत पाते हैं तो यहाँ पर 14 पॉइंट्स के साथ वो आगे जा सकती है। तो फिर रही बात वहाँ पर रियल कश्मीर की, रियल कश्मीर की टीम जो है AGS 11 की पहले बात करेंगे। AGS 11 की टीम ने 5 मैचेस अभी तक खेले, 3 में उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है और 1 वो ड्रॉ करने में कामयाब हुए और 1 वो हारे भी है। तो उनके पास जो पॉइंट्स यहाँ पर हैं पहले पूल में, तो वो है 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। वही अगर रियल कश्मीर की बात करें, रियल कश्मीर की टीम ने 6 मैचेस खेले हैं, 2 में जीत दर्ज की है, 2 वो हारे हैं, 2 ड्रॉ किए हैं और 1 मैच उन्होंने भी हारा। तो यहाँ पर थोड़ी सी बिडंग हो जाएगी रियल कश्मीर और मेरे ख्याल से अली जाना फुटबॉल क्लब के बीच में थोड़ी सी बिडंग रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो टीम है रियल कश्मीर महाराजा की बीच में वो आती है 5वें पायदान पर, लेकिन उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं। यहाँ पर कोशिश अब रहेगी अली जाना फुटबॉल क्लब की, जो उनके पास 1 मैच बचा है, कम से कम उसमें जीत दर्ज की जाए, क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस ड्रॉ किए हो। क्योंकि अगर उनको चौथे पायदान पे आना है तो फिर तो उनको काफ़ी कोशिश करनी होगी। यहाँ पर जो टीम है कश्मीर महाराजा को 6 पॉइंट्स के साथ वो 5वें पायदान पे है। चौथे पायदान, अगर वो 5वें पायदान पर आना चाहते हैं तो जो उनका मैच होगा अगला मैच, उसमें उनको कम से कम यहाँ पर जीत दर्ज करनी होगी। वही अगर बात की जाए दूसरे पूल की, वहाँ पर हमने बता दिया आरको फुटबॉल क्लब, जेके बैंक, अब नॉवेल्टी जो है 8 पॉइंट्स के साथ, अभी नॉवेल्टी के पास बिल्कुल बहुत मौका है, क्योंकि 2 मैचेस उनको अभी भी खेलने हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अगर उनको वापसी करनी है तो यहाँ पर उनको कम से कम यहाँ पर जो 2 मैचेस उनके पास है उनमें उनको जीत दर्ज करनी ही होगी। तो यहाँ पर फिलहाल अपने दर्शकों को बताते चलें, ये मैच नंबर 44वां जारी है खैबर मिल्क प्रीमियर फुटबॉल लीग का, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन और इन कोलैबोरेशन विद J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। इस वक्त मैच नंबर 44 जारी है, पहला सत्र इस वक्त चल रहा है। इस वक्त बॉल डिफेंडर के पास, बल्कि स्ट्राइकर के पास, 6 नंबर के खिलाड़ी के पास पास करते हुए, लेकिन वहां पर ऑफ साइड डिक्लेयर कर दिया गया, रेफरी की विसिल बजती हुई। और यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की बात अभी जारी है, क्योंकि अब ये मरहला जो है, अब ये लीग जो है उस मरहले में दाखिल हो रही है जहां पर इन टीमों को जीतना जो कि कोशिश होगी, जो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। जो 4 टीमें पहले पूल से निकलेंगी, 4 टीमें दूसरे पूल से भी निकलेंगी। और यहां पर स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी की अगर बात करें, अभी जो उनका मैच हुआ था उसमें वो हारे हैं, तो 6 मैचेस वो खेल चुके हैं, खाली 1 जीत उन्होंने दर्ज की है और उन्होंने 3 मैच हारे हैं, 2 में वो ड्रॉ करने में कामयाब हुए। तो उनके पास अब एक और चीज़ भी है, मैं आपको यहाँ से रोकना चाहूँगा, और वो ये है कि कुल मिला के अगर बात करेंगे तो 59 ही मैच हैं। पूल ए में 8 टीमें, पूल बी में 8 टीमें हैं। तो पूल ए की अगर बात करेंगे तो सारे टीम को 7-7 मैचेस खेलने हैं। तो अगर हम 8 टीम्स पूल ए, पूल बी की बात करेंगे तो कुल मिला के वो 56 मैचेस बनते हैं। फिर उसमें से 4 टीमें ऐसी होंगे जिनको फिर वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेमीफाइनल, वर्चुअल सेमीफाइनल, और जो कि 4 टीमें जिसमें प्रवेश करेंगे, और उसमें से फिर 2 मैचेस आएंगे। 56 + 2 हो गए 58। फिर फाइनली हमें उसमें से जो टीम 2 टीमें फाइनल में प्रवेश करेंगी तो होगा वो फाइनल मैच। तो इस तरह से आपको साफ ये नज़र आ रहा है कि टॉप 4 यहाँ पर मैटर करेगा, क्योंकि आप देखेंगे, देखो जेके बैंक की एक ऐसी टीम है, जेके पुलिस एक ऐसी टीम, और डाउनटाउन हीरोज ऐसी टीम है, और आरको फुटबॉल क्लब, उनको अगर 2 मैचेस यहाँ से जीत जाएंगे तो ये 4 टीमें ऐसी है जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकती है। बाकी टीमें जो है उनका सफ़र कुल मिला के समाप्त हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे हुआ है, हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ टीमें हैं जिन्होंने 7 मैचेस नहीं खेले हैं या 6 मैचेस भी नहीं खेले हैं। अब ये देखेंगे किस किस टीम ने अभी तक 7-7 मैचेस खेले हैं। पहले बात करेंगे पूल ए में से केवल एक टीम कश्मीर महाराजा फुटबॉल क्लब है जिन्होंने 7 मैचेस खेले, केवल एक
मैच जीता है, तो उनका सफ़र जो है समाप्त हो चुका है। फिर पूल बी की बात करेंगे। पूल बी में से किसी भी टीम ने अभी तक 6 मैच खेले ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से पूल बी में से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है टीम्स के लिए आगे जाने में, ठीक है। लेकिन पूल में से बहुत टीमें ऐसी है जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं। इस वक्त जो ये मैच चल रहा है पूल बी का चल रहा है, ठीक है। और इसमें अगर बात करेंगे, डाउनटाउन हीरोज ने 6 मैचेस खेले हैं, जेके पुलिस ने 6 मैचेस खेले हैं, और अली जना फुटबॉल क्लब ने 6 खेले हैं, जेके बैंक एकेडमी ने 6 खेले हैं, ये जेके फॉरेस्ट 11 ने भी 6 खेले हैं। ये वो टीम है, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर भी 3 टीम्स की बात करेंगे हम पूल ए में, उनका सफ़र भी कुल मिला के समाप्त हो चुका है। जेके फॉरेस्ट 11, जेके बैंक एकेडमी, अली जना फुटबॉल क्लब, 3 टीमें ऐसी पूल ए में हैं। मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता का जो सफ़र है वो कुल मिला के उनके लिए समाप्त हो चुका है, केवल एक मैच उनके लिए बच चुका है। और पूल बी की अगर भी बात करेंगे, यहाँ पर भी कुछ टीमें ऐसी है जिनका सफ़र समाप्त हो सकता है। इकबाल स्पोर्ट्स और फूड्स एंड सप्लाईज और इकबाल स्पोर्ट्स पूल बी में ऐसी 2 टीमें हैं जिन्होंने अभी तक कोई जीत दर्ज ही नहीं की है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ज़्यादा शानदार नहीं रहा है। तो कुल मिला के बात करेंगे, डाउनटाउन हीरो, जेके पुलिस, जेके बैंक, आर्को फुटबॉल क्लब, एजीज 11 और नॉवल्टी के पास अगर देखा जाए, नॉवल्टी के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि नॉवल्टी फुटबॉल क्लब इस वक्त तीसरे पायदान पे बिल्कुल वहां पर मौजूद है, लेकिन उन्होंने 5 ही मैच खेले हैं, 2 मैच। उनके लिए मसला इरशाद ये है कि उनका मैच जो है वो बहुत तगड़ा मैच आज होने वाला है। वो जेके बैंक के साथ है, जेके बैंक मैच हारती नहीं है, लेकिन उनके पास एक ये थोड़ा सा एक एज रहेगा, अगर उन्होंने ड्रॉ भी किया तब भी उनको 1 पॉइंट मिलेगा, तो उसे लेकर वो 9 अंकों के साथ वो पॉइंट्स टेबल के तीसरे पायदान पे ही रह जाएंगे। और जेके बैंक वैसे भी नंबर 1 पे ही रहेगा। बहरहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पर कितने मैचेस हो जाएंगे, लेकिन अब कुछ कमेंट्री भी यहाँ पर हो जाएगी। तो इस वक्त कॉर्नर की किक मिली है टीम को, और टीम है कश्मीर एवेंजर्स, जो कि 1-0 से पहले हाफ में इस वक्त मैच को आगे ले जाते हुए कॉर्नर किक मारने के लिए तैयार। उनकी किक, बेहतरीन किक, बॉल हवा में, हेडर मिला वहां पर, लेकिन एक बार फिर बॉल चली गई गोल लाइन से बाहर, मिल गई यहां पर एक और गोल किक सीधे फूड्स एंड सप्लाईज की टीम को। बहुत ही तगड़ा मुकाबला यहां पर हो रहा है। कश्मीर एवेंजर्स के लिए मैच काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर कश्मीर एवेंजर्स की बात करेंगे, उन्होंने भी 3 ही मैचेस खेले हैं और उनका ये 4था मैच है। अगर वो इस मैच को जीत जाएंगे तो 2 अंक लेके वो जो है पॉइंट्स टेबल में उनका कुछ खास ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन एक चीज यहां पर है, नॉवल्टी ने 5 खेले हैं, 2 जीते हैं। कश्मीर एवेंजर्स ने 3 खेले हैं, 1 ही जीता है। अगर आज कश्मीर एवेंजर्स यहां से मैच जीत लेती है तो वो फिर नॉवल्टी को आगे ले बढ़ गया। हाँ, और ये भी डिपेंड करेगा कि जेके बैंक के खिलाफ नॉवल्टी जीतेगी या हारेगी। अगर जीत गई तो फिर कश्मीर एवेंजर्स के लिए खतरा है, अगर हार गई तो फिर कश्मीर एवेंजर्स का जो सफ़र है वो थोड़ा सा आगे जाएगा। चले, बात हम कर रहे थे यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की। पूल ए में से टॉप कर रही है डाउनटाउन हीरोज और पूल बी में से टॉप कर रही है जेके बैंक 11 की टीम। जैसे कि इरशाद ने आपको कहा है, पहले 3 मैचेस में लगातार 3 मैच जीते थे जेके पुलिस 11 ने, लेकिन उसके बाद 3 मैच जो है वो ड्रॉ, तीनों मैच हुए हैं। एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन बाल बनाई गई यहाँ पर, नंबर 13 ने पास दिया वहां पर नंबर 5 के खिलाड़ी को, और दागा यहाँ पर गोल नहीं, लेकिन वहां पर बीच में आए गोलकीपर, उन्होंने बेहतरीन काम कर दिया, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन पास था। कश्मीर एवेंजर्स के जो मोजिज है, नंबर 5 के खिलाड़ी, मुझे लगता है कि मोजिज जो है उन्होंने काफी शानदार कोशिश की थी, लेकिन वहां पर उससे भी बेहतरीन शानदार कोशिश थी गोलकीपर की। नंबर 4 और नंबर 5 के बीच वहां पर थोड़ी सी गहमा गहमी, बॉल को आगे बढ़ाने में कामयाब नंबर 7 फूड्स एंड सप्लाईज के वहां पर डिफेंडर, उन्होंने बॉल को वहां से लिया। हालांकि उनके ये मिडफील्डर है, मिडफील्ड से बॉल को सेंटर फॉरवर्ड लेने की यानी कि कोशिश की थी, लेकिन बीच में बॉल को वहां से लिया गया और एक बेहतरीन पास दिया वहां पर कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी ने अपने दूसरे खिलाड़ी को। नंबर 3 कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाने में कामयाब, एक बार फिर उन्होंने बॉल को आगे बढ़ा दिया, बॉल सेंटर लाइन के आसपास, लेकिन एक बार फिर बॉल को सीधे गोलकीपर के हाथों भेज दिया गया और कोई भी खतरा नहीं। स्कोर अभी भी 1-0। कश्मीर एवेंजर्स ने 1 गोल दागा है फूड एंड सप्लाईज की टीम को, जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है। फूड एंड सप्लाईज जिन्होंने अभी तक इस प्रतियोगिता में या इस
इवेंट में अगर बात की जाएगी 5 मैचेस खेले और 5 में से अभी तक कोई भी मैच उन्होंने नहीं जीता है। काफ़ी ख़राब सफ़र रहा है अभी तक फूड एंड सप्लाईज की टीम को। यहाँ पर कुछ नए नए तरीके बीच बीच में आते हुए फूड एंड सप्लाईज का स्क्वाड हमारे पास पहुंच चुका है और कश्मीर एवेंजर्स का स्क्वाड भी हमारे पास पहुंच चुका है। बात करेंगे फूड एंड सप्लाईज का स्क्वाड जो है, आदिल है, आमिर है, वसीम है, एजाज, शबीर, ताहिर, इकबाल, एजाज, इरफान, एशान, अल्ताफ, इमरान, शारिक, सुवैद, ओवैस। तो लिस्ट जो है उमूमन जो फुटबॉल का जो लिस्ट होता है 20 खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होता है इरशाद। यहाँ पर फूड एंड सप्लाईज की बात करेंगे, मुझे लगता है कुछ बेंच स्ट्रेंथ उनकी जो वो कुछ खास नहीं है, यहाँ पर खतरा बन सकता था, लेकिन फूड एंड सप्लाईज की टीम जो है एक बार फिर बिखर गई इस इवेंट में। तो इरशाद बात करेंगे फूड एंड सप्लाईज की, उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ जो होती है वो कुछ खास नहीं है। केवल 15 खिलाड़ियों का जो लिस्ट हमारे पास पहुंचा है, उमूमन ये 20 खिलाड़ियों का जिस तरह हमारे पास पहुंचा है, कुल मिला के 19-20 खिलाड़ियों का लिस्ट पहुंचा है दूसरी टीम का कश्मीर एवेंजर्स का, तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट बहुत कम है कश्मीर फूड एंड सप्लाईज के लिए। तो इस तरह से लग रहा है कि जो टीम में नए खिलाड़ी जो है वो बहुत कम है, सीनियर खिलाड़ी ज़्यादातर खेल रहे हैं। तो इस बारे में आप इरशाद क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, उतनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पर फूड एंड सप्लाईज की। केवल 15 खिलाड़ियों का लिस्ट जो है पहुँचा है। तो आज जो कोविड-19 में आप 5 खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जो फीफा की गाइडलाइंस के अनुसार जो आज आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं आज की फ़ुटबॉल में, तो मॉडर्न फुटबॉल में, तो उसमें आप 5 का रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या है कि 4 खिलाड़ियों का बल्कि रिप्लेसमेंट आप पहले ले सकते थे। तो फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे अगर कश्मीर एवेंजर्स की टीम की, तो वहाँ पर 19 खिलाड़ियों की टीम पर ये टीम मुश्तमिल है। इशफाक है, साकिब, शारिक, शबीर अली, शादाब, कैलविन, मोजिज़, आनिस, मुसैब, अयान, इनायत, बुरहान, लियाकत, हुज़ैफ, फ़हाद, मोमिन, मुंतज़िर, जुनैद एंड फरहान पठान। लास्ट में उनके जो ऑफिशियल्स जो है शेख रिजवान उनके हेड कोच और नादिर नज़ीर जो है उनके मैनेजर, असिस्टेंट कोच है उनके मोहम्मद अली और बुरहान है उनके फिजियो। तो ये टीम थी कश्मीर एवेंजर्स की, जिसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। कैलविन है 25 के पहने हुए जर्सी में और मोजिज़ है 5 नंबर की जर्सी में। आगे करते हुए यहाँ पर बॉल को फूड एंड सप्लाईज के गोलकीपर अपने डिफेंडर की और डिफेंडर ने सीधे बॉल को पहुँचा दिया है वहाँ पर, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर 4 नंबर के खिलाड़ी अपने गोलकीपर की ओर उसको पहुँचाया और गोलकीपर ने वापसी पर उसके पास फिर से पहुँचाई बॉल। तो इस तरह इस वक्त 2 खिलाड़ी कन्वर्ज करते 19 नंबर और 4 नंबर के, लेकिन वहाँ पर रेफरी की बल्कि विसल वहाँ पर बजती हुई। तो फ्री किक यहाँ पर इशारा कश्मीर एवेंजर्स को मिला है। 6 नंबर के खिलाड़ी इस वक्त बीच मैदान में पासिंग करते हुए बॉल को आगे की तरफ, लेकिन गोलकीपर उस ओर फूड एंड सप्लाईज का आगे करते हुए अपने दस्तानों में लेते हुए आगे करते हुए अपने आउटफील्डर्स के लिए, लेकिन वहां पर डिफ्लेक्शन के साथ फिर से बॉल आई है इस वक्त कश्मीर एवेंजर्स के कैप्टन के पास। कैप्टन ने बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश की। 4 नंबर के खिलाड़ी फूड एंड सप्लाईज के बीच में ही वहां पर आ पड़े, कोई मौका नहीं वहां पर आगे जाने का। 2 नंबर के खिलाड़ी के पास फिर से बॉल पहुंची है। 10 नंबर के खिलाड़ी फरहान इस वक्त जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर 2 नंबर के खिलाड़ी के पास पहुंचा दी, वहां पर 4 से फिर से गोल का और कर दिया। तो दूसरा गोल यहां पर कामयाब करने में कामयाब हुई यहां पर कश्मीर एवेंजर्स के 8 नंबर के जर्सी उनके कैप्टन ने एक गोल दाग दिया है। तो दूसरा गोल आता हुआ, तो यहां पर क्या शानदार एंट्री फिलहाल कश्मीर एवेंजर्स के फुटबॉल टीम के लिए, और उसकी भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर वर्चुअली देखा जाए पहले फरहान ने क्या शानदार तरीके से उसको छकाया, वहां पर जो डिफेंडर थे, डिफेंडर के डिफ्लेक्शन के साथ दूसरे खिलाड़ी के पास चली गई, 2 नंबर के मुसाब के पास वहां पर उठते हुए, क्योंकि वहां पर कोई जो है उनके पास रूम नहीं था, तो छोड़ते हुए अपने कैप्टन के लिए। तो इस तरह आज यहां पर दूसरा गोल करने में कामयाब हुई। बहुत ही शानदार और क्या शानदार मुकाबला इस वक्त जारी है, लेकिन कश्मीर एवेंजर्स की टीम 2 गोल लेने में कामयाब हुई। यहां पर सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड TRC श्रीनगर से हम बराह रास्त मैच नंबर 44 इस वक्त पहला सत्र जारी है।
और कश्मीर एवेंजर्स की टीम बिल्कुल कोई मौका नहीं दे रही है इस वक्त टीम फूड एंड सप्लाईज को। फूड एंड सप्लाईज की टीम फिलहाल यहाँ पर कोशिश में है कि बॉल को आगे पहुंचाए। 13 नंबर के अहमद अभी पहला गोल करने में कामयाब है, फिर से अंदर जाते हुए वहां पर पॉसिंग 10 नंबर के खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां पर फिर से मोजिस आते हुए, बल्कि कैल्विन वहां पर पहुंचे थे मोजिस बल्कि, और मोजिस ने भी यहां पर कोशिश की थी आगे जाने की, बॉल को वो उछाल के गए और बॉल सीधे चली गई है वहां दर्शक दीर्घा में, तो वहां से बॉल वापस आएगी। लेकिन कोशिश अभी जो है, अभी पूरा दबदबा जो है बनाए रखा है यहाँ पर कश्मीर एवेंजर्स की टीम ने, और वो 2 गोलों से इस वक्त आगे चल रही है। फूड एंड सप्लाईज की टीम 0 के साथ यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उनके गोलकीपर फिलहाल यहाँ पर बॉल को प्लेस ऑन करते हुए और सीधे किक मारते वहां पर डिफेंडर, बीच मैदान पर हेडर का इस्तेमाल, वहां पर अपोजिट के खिलाड़ी के द्वारा 5 नंबर के कैल्विन के पास पहुंचाने की कोशिश की थी। मोजिस वक्त आगे करते हुए दूसरे खिलाड़ी के पास, 13 नंबर के खिलाड़ी वहां पर आते हुए, बहुत ही शानदार इस वक्त पासिंग जारी है यहाँ पर कश्मीर एवेंजर्स के खिलाड़ी वहां से बॉल छीन लेगी 7 नंबर के जो खिलाड़ी है फूड एंड सप्लाईज के, उनसे बॉल बल्कि बाहर चली गई है, तो इस तरह थ्रो इन मिलता हुआ यहाँ पर फूड एंड सप्लाईज 11 की टीम को। फूड एंड सप्लाईज की टीम को यहाँ पर रणनीति में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, अन्यथा ये बॉल मैच जो है उनकी हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि 2 गोल आगे यहाँ पर करने में कामयाब हुई है। आगे करते हुए यहाँ पर अपने डिफेंडर के लिए, डिफेंडर ने दूसरे मिड डिफेंडर के लिए बॉल को पहुंचा दिया है, और सेंटर बैक भी जिसको हम कह सकते हैं, सेंटर बैक के खिलाड़ी इस वक्त फॉरवर्ड करते हैं मिडफील्डर के लिए, मिडफील्डर में 10 नंबर के खिलाड़ी बैक पॉज करते हुए अपने खिलाड़ी की ओर, इस वक्त बीच मैदान पर बॉल है मोजिस के पास, मोजिस ने बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश की, 2 नंबर के खिलाड़ी इस वक्त जा रहे हैं वहां पर पॉसिंग देते हुए, लेकिन डिफेंडर वहां पर शानदार काम, वहां पर डिफेंडर द्वारा जो सेंटर बैक के खिलाड़ी थे उसने अपने गोलकीपर के लिए एक अच्छा काम करते हुए आगे करते हुए, लेकिन बॉल पे नियंत्रण नहीं था, बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई है। और अभी जो पोजीशन है कश्मीर एवेंजर्स की 5वें पायदान पर वो है इस वक्त पूल बी में, और वो कोशिश यही करेंगे कि आज यहाँ पर अगर वो जीतने में कामयाब होती है तो 4वें नंबर पे भी वो पहुंच सकती है। आगे करते हुए यहाँ पर बुरहान ने 3 नंबर के खिलाड़ी ने छोड़ा वो अपने गोलकीपर के लिए, तो गोलकीपर आगे करते हुए फिर से अपने जो डिफेंडर है उनकी और बाहिन साइड के डिफेंडर के पास अब पहुंचा दी वापस अब करते हुए राइट साइड के डिफेंडर को, राइट साइड के डिफेंडर ने 6 नंबर के खिलाड़ी के पास इस वक्त बॉल है। बहुत ही जबरदस्त पासिंग जारी है यहाँ पर, और कुछ दर्शकों की यहाँ पर एंट्री होती हुई बीच स्टैंड्स की ओर, और यही अब अगर वापसी करनी होगी यहाँ पर टीम फूड एंड सप्लाईज को, तो कम से कम 1 गोल यहाँ पर करने में उनको कामयाबी होनी चाहिए, अन्यथा ये गेम उनसे दूर जाता हुआ। आगे करते हुए यहाँ पर बॉल को 42 नंबर के खिलाड़ी 6 नंबर के साउंड के लिए, और आगे करने में कामयाब 19 नंबर के खिलाड़ी पहुंचे वहां पर, फिर से पॉसिंग करते हुए वहां पर जो विंगर थे, विंगर से बॉल इस वक्त छीनने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी, लेकिन उन्हें पॉसिंग देने की कोशिश की अपने दूसरे विंगर के पास। 19 नंबर के खिलाड़ी इस वक्त 2 पिलर्स को छकाते हुए आगे जा रहे हैं इस वक्त। फरहान बहुत ही शानदार तरीके से पहुंचे, 19 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही छकाया वहां पर, लेकिन वहां पर थोड़े से किक जब अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो फिर नीचे गिर पड़े, क्योंकि वहां पर 2-3 खिलाड़ी आने की कोशिश कर रहे थे, रूम बनाने की कोशिश कर रहे थे फरहान, लेकिन वहां पर कोई मौका नहीं, और इस तरह फरहान पठान 10 नंबर के खिलाड़ी इस वक्त नीचे पड़े हुए, और रेफरी का इशारा वहां पर फिजियो के लिए, बुरहान जो है उनके फिजियो, उनको अब अंदर बुला लिया जाएगा, लेकिन फरहान बल्कि अयान है ये 19 नंबर के खिलाड़ी, अयान ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। अयान है 19 नंबर के खिलाड़ी, और फरहान पठान बल्कि 10 नंबर के खिलाड़ी। मुकाबला इस वक्त जारी है, कश्मीर एवेंजर्स मैन इन वाइट एंड ब्लूज एंड द मैन इन ऑरेंज इज द टीम ऑफ फूड एंड सप्लाईज 11। फूड एंड सप्लाईज के जो कैप्टन है
वो बीच मैदान से गुजरते हुए। काफी कश्मकश बुरा मुकाबला इस वक्त जारी। इस वक्त रेफरी के पास बॉल है तो ये ड्रॉप इन बॉल होगा शायद। मोमिन 3 नंबर की जर्सी में कश्मीर एवेंजर्स के, 6 नंबर की जर्सी में इस वक्त कश्मीर एवेंजर्स के जुनैद। ड्रॉप बॉल होगा। ड्रॉप बॉल यहाँ पर फिर से रिस्टार्ट होता हुआ मैच। यहाँ पर 3 नंबर के खिलाड़ी 2 नंबर के मुसाब के पास पहुंचा दी। मुसाब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की, बिल्कुल टांग में से निकाल कर, तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से वहां पर ये पॉसिंग नटमैग और आगे करते हुए यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी के पास, चौथे नंबर के खिलाड़ी ने वहां पर अपने लेफ्ट साइड के खिलाड़ी के पास पहुंचा दी। लेफ्ट साइड के खिलाड़ी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बॉल है मोजिस के पास। मोजिस यहाँ पर आगे जाते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ बॉल पहुंचा दी 19 नंबर के अहियान के पास, जो अभी कुछ क्षण पहले जख्मी हुए थे लेकिन अब फिर से उठते हुए, तो अच्छी खबर उनकी टीम के लिए। यहाँ पर आगे कोशिश कर रहे हैं 15 नंबर के खिलाड़ी, बिल्कुल पासिंग जबरदस्त। 18 नंबर के खिलाड़ी के पास आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं सेंटर फील्ड के खिलाड़ी। इस वक्त 10 नंबर के अयान बहुत ही शानदार तरीके से आगे जाने की कोशिश की थी लेकिन गोलकीपर आगे आते हुए अपने दस्तानों में लेते हुए, तो कोई भी वहां पर संभावना नहीं। 99 नंबर के गोलकीपर जो है आदिल वहां पर आगे आते हुए और बॉल को वो आगे कर रहे हैं। तो मैं अब कमेंट्री के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा अपने साथी शफी परा को। Thank you, Irshad. Kashmir Avengers have taken a lead of 2-0 in this match. They have come up with all the guns blazing in the first half of the match with magnificent performance. Their centre forward strikers are banging on the targets. Although they got few more opportunities, they were lost at the end, and they were wasted at the end, in fact, and which could have been even the huge difference between the scores there. It could have been 4 on the board, as Moses got a couple of chances there. He was brought down once more. He is having some words with match referee, and football is a game of heat of moments. Kashmir Avengers is taking on Food and Supplies here at the synthetic turf TRC Srinagar. Food and Supplies have to yet to go off the mark in this event, as they haven't won any match out of 5 matches. This is going to be 6th match for them. Can they come up with a good bang here, or can they go without winning any match further in the event? 44th match of Khyber Milk Premier Football League 2021, which is being organized by JKFE in collaboration with JK Sports Council, presented by AMRL Labs. Accuracy or nothing, a unit of AMRL Ventures Private Limited, recognized and registered with Central Government of India. Shamrock, India's first police school chain where young minds grow, and it is powered by Arise Hyundai and sponsored by Himalaya Platinum TMT Sarai. Syria. Himalaya Platinum TMT Syria. I hope I am pronouncing this Syria word correctly now. Meanwhile, the ball has been well placed within the circles there, and it's a few players coming around. Number 11 from the team of JK Police, JK Food and Supplies. In fact, they have yet to go off the mark. They haven't scored any goals so far. Food and Supplies. The ball has been tackled away. It's a superb cross move. It was a lateral pass from the team of Kashmir Avengers, Huzaf. Ball has been taken away, going back straight away to the defender. In fact, from defender to the goalkeeper. He just on a first bounce kicks the ball, and here comes the match referee showing some signals there. I think one more yellow card has been displayed there. Not a good move by the goalkeeper, I guess, who is going to be a victim this time.
And it's a foul kick that goes in favor of Food and Supplies now. Can Food and Supplies convert this opportunity into a goal? Can they go off the mark? Can they win this match? Because they're yet to go off the mark in the event. They haven't won any match. It has been a terrible performance for them. A terrible event for Food and Supplies. And this can blow them more further psychologically. Human wall already has been created by Kashmir Avengers around the edges of the rectangular area. That was a superb kick, but the goalkeeper on the other side was much more acrobatic, and he stops all the chances for the team of Food and Supplies. Khyber Milk is a tournament of 16 teams and an event of 59 matches. 44th match is going here. First half in progress. The second match will be JK Bank will be taking on Novelty. That is also going to be a superb encounter. A fumble was there. He was brought down. Match referee has taken some advantage there. Continues the ball. First half comes to an end. After the end of first half, Kashmir Avengers 2, Foods and Supplies 0. We're signing off for 10 minutes or 15 minutes. Until then, goodbye.